Good morning to all you awesome people. I welcome you all on our YouTube channel JPSC Simplified. Let's crack JPSC. So, my dear friends, in the last lecture, we have studied the macroeconomic indicators of Jharkhand in the economic survey, and in today's lecture, we will continue from that portion only. Okay, so today we will start with a decomposition of Jharkhand's growth story, that is sectoral variations in the growth rate of Jharkhand. Okay, you know that there are three sectors in the economy. They are the primary sector, the secondary sector, and the tertiary sector. Okay, and in case of India, the tertiary sector's contribution in the GDP, or in case of state in the GSDP, is the major chunk. Okay, and in case of Jharkhand also the condition is the same, that is the tertiary sector's contribution is the fastest and is the biggest in the growth of Jharkhand. It is also mentioned here, see, the tertiary sector has grown at the fastest rate this year in 2019-20. So this is an important fact that you should keep in mind first and foremost. Okay, the primary sector has been estimated to grow at the rate of 3.6%, the secondary sector at the rate of 3.8%, and tertiary sector is estimated to grow at the rate of 8.3% in the financial year of 2019-20. So you should also remember this fact that the primary sector is estimated to grow at 3.6%, the secondary sector is estimated to grow at 3.8%, and tertiary sector has been estimated to grow at 8.3%. So for the prelims point of view, this data becomes important. Okay, and for the mains perspective also, you should remember this data. It will enhance your answers. Okay, now let's move to the next fact. In the last 4 years, between 2016-17 to 2019-20, the tertiary sector has grown at the CAGR of 9.5%, the primary sector at the average rate of 4.8%, and the secondary sector by 4.9%. Okay, so you can see that the contribution and the growth of the tertiary sector has been the most in the recent years. Okay, and in the tertiary sector, the air transport has recorded the fastest growth. So it may also become a potential question from the economic survey that which sector under tertiary sector has recorded the fastest growth. So what is that? It is the air transport. Okay. Trade and repair services is another subsector of the tertiary sector which has recorded an impressive growth in Jharkhand. Okay, so you saw that two sectors under the tertiary sector that has recorded the maximum growth or the fastest growth are the air transport and the trade and repair services. Okay, so you should remember this also. Now, there are sectors like storage and public administration, they have not fared good in the growth of the tertiary sector. Okay, so these sectors like storage and public administration, they have not fared well under the category of tertiary sector. Okay, now the modest growth of the secondary sector is because of the slow growth in construction and manufacturing subsectors. Okay, and a negative growth in electricity, gas, water supply, and other utilities. See, you have seen the growth of the tertiary sector. Now we are talking about the secondary sector. So comparing to the tertiary sector, the growth in the secondary sector has been less. Okay, and what are the reasons for the slow growth? So the slow growth of the manufacturing sector is because of the slow growth in construction and manufacturing
and a negative growth rate in electricity, gas, water supply, and other utilities. So this becomes very important, that under the secondary sector, which subsector had negative growth rate? So it is electricity, gas, water supply, and other utilities. Okay, you should remember this fact. Now, and why this negative growth rate in the subsectors of electricity? Because of the losses incurred by Jharkhand Vidyut Vitran Nigam Limited, that is JBVNL. It incurred negative growth. Okay, and that's why we saw negative growth rate in electricity, gas, water supply, and other utilities under the secondary sector. Okay, and under the primary sector, you know that the growth rate of the primary sector is least among these three sectors. Okay, so that you should remember, and that is also important from the examination point of view. And you should remember that fishing under the primary sector has recorded an impressive growth in the last several years. In the last 4 years, it grew at an average annual rate of 18.6%. So, though the growth rate of the primary sector had been minimal, but the fishing sector under the primary sector has recorded an impressive growth rate. Okay, about 18.6% growth, an average annual rate of 18.6% in the last 4 years. Okay, see, all these things that we studied today, it has been compiled in this table in the economic survey. Here you can see the electricity, gas, water supply, and other utilities. You can see here the negative growth rate. Okay, see here it is at constant prices and current prices, and for all it has uh, it had negative growth rate. Okay, so here you don't have to remember all the data, just you have to remember that which sector had the negative growth rate under the, that's I think most that you should remember. And also you should remember that the most growth rate shown by which subsector under the tertiary sector, so it is the air transport. Okay, these two things in the tertiary sector becomes very important for you. See here the GSVA, the growth rate at constant prices is 5.79%, and at current prices it is 10.44%. For GSDP it is 7.19 at constant prices and 11.56 at current prices. Okay, so this data is very important and you should remember this for the prelims point of view and from the your mains point of view also. Okay, now here we can see that sectoral contribution to growth rate. So it has contributed 65% to the growth of the state's economy in the year 2019-20. So which sector had contributed 65% to the growth rate of state's economy? So it is the tertiary sector, and the contribution of primary sector is 15% and secondary sector is 20% in the growth rate of the economy. So this data is also very important and you should remember this. And see, under the tertiary sector, trade, repair, hotels and restaurants, 1, real estate, ownership of dwelling and professional services, 2, and transport, storage, communication and services related to broadcasting. These three subsectors have made the major contribution to the growth of the state's economy. Okay, you should also remember this thing. Okay, now more than 50% contribution to the growth of GSDP in the state has been made by these three subsectors. Okay, now and what is the reason for their high contribution to the growth rate of the economy? Because of their good performance coupled with their large share in the economy. Let's move to directly to the table. Okay, see here in the table whatever it is written here, it has been tabulated in this table. So the under the primary sector, you should remember that crops, livestock, forestry and logging, fishing and aquacultures are included.
Apart from these sectors, mining and quarrying are also included in the primary sector. This is very important from the examination point of view, and I think in some of the examination it has been asked that mining and quarrying they are under the primary sector. This is very important. Okay, and primary sector's contribution in the growth rate we have seen it is around 15%, exactly 15.2%, and share in the GSVA is about 23.8%. So this is very important fact. Okay, and what are the sectors under under secondary sector? So they are manufacturing, electricity, gas, water supply, and other utilities, and construction. These three sectors are under the manufacturing sector. Okay, and in the tertiary sector, you can see these following sectors they come under the tertiary sector. Okay, so secondary sectors, your contribution in the growth rate is about 20%, and share in the GSVA is about 29.5%. This is very important fact. And for the tertiary sector, its contribution in the growth rate is about 65%, and contribution in the GSVA, or sorry, GSDP is 46.7%. Okay, so these three things you should remember, that contribution of the primary sector in the growth rate and its contribution in the, for same you should remember for the secondary sector as well as the tertiary sector. Okay, and I think same thing it is given for the GSVA, and this is not very important. Main data that you should remember is for the GSDP only. And yes, this is important, that share of the tertiary sector in the GSVA of the state has increased while those of the other sectors has declined. From the GSVA point of view, you should remember this thing, that the share of the tertiary sector has increased, but the share of the primary and the secondary sectors in the GSVA has decreased. This is important from the examination point of view. Okay, now, and what is the reason? Because both the technological limitations of the agricultural sector and the change in the composition of demand with the increase in income has resulted in the decrease of the share of the primary sector in the GSVA. Okay, and in this only, one law that you should remember is the Engel's law. Okay, and what is Engel's law? So here you can see Engel's law is an observation in economics stating that as the income rises, the proportion of the income spent on the food falls. देखो ये क्या बोल रहा है कि जैसे जैसे आदमी का जो इनकम है वो बढ़ता है, वैसे वैसे उसकी जो इनकम का जो प्रपोर्शन है जो कि वो खाने पीने पे खर्च करता है, वो क्या होता है कि कम हो जाता है। ठीक है, क्यों कम हो जाता है? तो अगर हम एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करें तो देखो क्या होता है कि मान लो मेरा इनकम महीने का 25,000 रुपया है, मैं 5,000 रुपये खाने पे खर्च करता हूँ। अब मेरा प्रमोशन होता है और मेरा इनकम 50,000 हो जाता है, तो फिर भी तो यार मैं 5,000 ही खर्च करूंगा ना अपने खाने पीने पे, मैं अपना खाना पीना तो दोगुना नहीं कर दूंगा। तो अगर हम प्रपोर्शन की बात करें तो पहले मैं 25,000 में 5,000 खर्च कर रहा था, ठीक है, तो 5,000 बटा 25,000 कितना हुआ? 1/5। और अब मैं 50,000 में 5,000 खर्च कर रहा हूं तो 1/10 हो गया ना। तो मेरा जो प्रपोर्शन है टोटल इनकम का जो कि मैं अपने फूड पे खर्च कर रहा हूँ वो मेरा कम हो गया। तो यही चीज बताता है एंजल्स लॉ कि जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ता है तो हमारे इनकम का वो प्रपोर्शन जो हम फूड पे खर्च करते हैं वो कम हो जाता है। तो ये एंजल्स लॉ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। ओके, नाउ द ग्रोइंग डोमिनेंस ऑफ द सर्विस या टर्शियरी सेक्टर however is an all India phenomena and Jharkhand is not an exception to it। तो आपको तो ये पता ही है कि जो सर्विस सेक्टर है हमारे भारत में सबसे ज्यादा इसका
कंट्रीब्यूशन भी है जीडीपी में, और सबसे ज्यादा जो ग्रोथ रेट है ना, वो भी इसी सेक्टर का है। तो और ये चीज जो है झारखंड के लिए भी लागू होती है। ठीक ठीक है, तब अब हम आगे पढ़ते हैं। तो आगे में देखो यहाँ पे आ रहा है आपका एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग सेक्टर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो वही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आपको कुछ कुछ डाटा दिए हुए हैं, उतना आपको याद करने की दरकार नहीं है। ठीक है, और बाकी वही सब देखो सेक्टर्स का जो जो प्राइमरी सेक्टर्स है उसके कुछ कुछ टेबुलेशन दिए हुए हैं। तो इतना आपको डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस आप ये जरूर याद रखिएगा कि देखो 2019-20 में 2019-20 में जो आपका प्राइमरी सेक्टर रहा है उसमें किस उसके अंदर जो सब सेक्टर्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन, आप एक ट्रेंड जरूर याद रखिएगा कि क्रॉप प्रोडक्शन का जो शेयर है प्राइमरी सेक्टर में वो 54% है। उसके बाद फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग का 24% है। फिर लाइव स्टॉक का 17% है। और फिशिंग एंड एक्वाकल्चर का 5% है। तो आपसे ये क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि भाई अंडर द प्राइमरी सेक्टर किस सब सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना रहा है, या आपसे एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी पूछ सकता है कि भाई डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंट्रीब्यूशन इन द प्राइमरी सेक्टर पे आप इसको अरेंज कीजिए। तो ये आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसी तरीके से देखो यहाँ पे इंडस्ट्री सेक्टर के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको इसमें मेजरली जो आपको याद रखना है कि देखो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर एक सेक्टर आता है जिसका कंट्रीब्यूशन 50% से ज़्यादा होता है। माइनिंग एंड क्वेरिंग ये आता तो प्राइमरी सेक्टर के अंदर है, लेकिन अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूडेड होता है और माइनिंग एंड क्वेरिंग भी इंक्लूडेड होता है। ठीक है, और इसका कंस्टिट्यूएंट कितना है, तो 24% इसका कंस्टिट्यूएंट है अंडर द इंडस्ट्री। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी जो है ये हमने देखा कि इसका नेगेटिव ग्रोथ रेट रहता है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये यहाँ पे कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर जो भी सब सेक्टर्स आते हैं उनका। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, बाकी इसको याद व्याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे यही दिया हुआ है देखो कि ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये आप ध्यान में रखिएगा कि इंडस्ट्रियल आउटपुट में किस सब सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो है वो कितना रहा है। अगर आप डाटा नहीं भी याद रखें तो आप कम से कम क्रोनोलॉजी जरूर याद रखिएगा कि जैसे मैन्युफैक्चरिंग का सबसे ज्यादा रहा है, उसके बाद आपका माइनिंग एंड क्वेरिंग का रहा है, फिर कंस्ट्रक्शन का रहा है, और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटीज का सिर्फ 1% रहा है। ठीक है, उसके बाद हम टर्शियरी सेक्टर में भी वैसे ही बात कर रहे हैं, तो वो भी हमने डाटा के थ्रू देखी, मतलब सॉरी टेबल के थ्रू हमने देख ही लिया है कि जो ग्रोथ रेट में कंट्रीब्यूशन इसका 65% के आसपास का है। जीएसबीए में जो है इसका 47% के अराउंड का कंट्रीब्यूशन है। ट्रेड, रिपेयर, होटल्स एंड रेस्टोरेंट जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग सब सेक्टर है इसके अंदर। ठीक है, और जो अदर सब सेक्टर्स हैं उनका जो है वो अनचेंज रहा है या मार्जिनली ही चेंज हुआ है। ठीक है, तो इतना आपका टर्शियरी सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। बाकी टेबल में वही सबको टेबुलेट करके दिखाया हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शेयर ऑफ द सब सेक्टर्स इन द आउटपुट ऑफ द टर्शियरी सेक्टर। तो यहाँ आप देख लो यार कि सबसे ज्यादा किसका है, ट्रेड, रिपेयर, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स का दिया हुआ है। उसके बाद आपका रियल इस्टेट ओनरशिप ऑफ ड्वेलिंग एंड प्रोफेशनल सर्विसेज का दिया हुआ है। फिर ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन रिलेटेड सर्विसेज का दिया हुआ है। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आप एक बार ध्यान रखना, कभी कभी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इन्फ्लेशन इन झारखंड के बारे में दिया हुआ है। तो इन्फ्लेशन जो है वो झारखंड में 7% के बिलो ही रहा है। और एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया जो है वो मेजर किसमें किया जाता है, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में किया जाता है। तो ये आप जरूर याद रखना कि जो इन्फ्लेशन है वो हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के तौर पे मेजर करते हैं, और रेट ऑफ इन्फ्लेशन बोथ इन इंडिया और झारखंड जो है वो बिलो 4% रहा है अगस्त 2018 से। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन झारखंड हैज आइदर बीन ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ऑफ द कंट्री और हायर देन द नेशनल रेट। ठीक है, तो हमारा जो झारखंड का इन्फ्लेशन रेट है
वो नेशनल एवरेज से या तो उसके बराबर ही होता है या उससे ज़्यादा होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ दिया हुआ है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर द न्यू मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एम्ड टू ब्रिंग रिटेल इन्फ्लेशन बिलो 6% बाय जनवरी 2016 एंड टारगेट फॉर ऑल द सब्सिक्वेंट ईयर वाज फिक्स्ड एट 4% विद अ बैंड ऑफ प्लस माइनस 2%। तो अभी इन्फ्लेशन जो है कितना है आरबीआई के द्वारा, तो 4 प्लस माइनस ऑफ 2 की उसको जो 6% से लेके 2% के बीच में ही इन्फ्लेशन जो है वो होना चाहिए, उसके बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बहुत कम हो गया तो भी इकोनॉमी में प्रॉब्लम होगा और इन्फ्लेशन अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो भी इकोनॉमी में प्रॉब्लम होगा। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए, इसीलिए जो रेंज डिसाइड किया गया है वो है 2% से लेके 6% के बीच में ही रेट ऑफ इन्फ्लेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और इन्फ्लेशन रेट इज मेजर्ड एज चेंज इन सीपीआई कंबाइंड ऑफ द मंथ इन कंपैरिजन टू द सेम मंथ लास्ट ईयर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे पूछे कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो कैसे मेजर किया जाता है, तो चेंज इन सीपीआई कंबाइंड ऑफ द मंथ इन कंपैरिजन टू द सेम मंथ लास्ट ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब देखो यार एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे दी हुई है, वो है पॉवर्टी के बारे में, और उसमें दिया हुआ है आपको ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2000। तो ये रिपोर्ट के बारे में आपको जरूर जानकारी होनी चाहिए कि ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2019 रिपोर्ट ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, तो ये रिलीज किया जाता है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, तो ये जरूर याद रखिएगा, ये एक प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकता है। और झारखंड का कंडीशन क्या है पॉवर्टी का, तो देखो भाई 2015-16 तक 46.5% ही हमारा जो पॉपुलेशन है वो अभी पॉवर्टी के अंदर आता है। पहले कितना था, तो पहले 74.7% था 2005-6 में, अब वो घट के 5% हो गया है 2015-16 में। ठीक है, इंडिया और कंबोडिया ये दो कंट्रीज हैं जो कि फास्टेस्ट रहे हैं 10 सेलेक्ट कंट्रीज में टू हैव रिड्यूस देयर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। ओके, और विद इन इंडिया झारखंड इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट हैज मेड द फास्टेस्ट रिडक्शन इन द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है ना, इसको जरूर याद रखिएगा कि सारे स्टेट्स में सबसे ज्यादा जो है इस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में कमी की, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में सबसे ज्यादा किसने रिडक्शन दिखाया है, तो वो है झारखंड। ओके, अब देखो यार मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की अगर हम थोड़ी सी डिटेलिंग देख लें, तो इसमें बेसिकली कितने इंडिकेटर्स होते हैं, 10 इंडिकेटर्स होते हैं, जो कि न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी, years of schooling, school attendance, access to cooking, fuel, sanitation, drinking water, electricity, housing and assets। ये 10 इंडिकेटर्स होते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अंदर। ओके, और ये जो 10 इंडिकेटर्स हैं ये 3 इंपॉर्टेंट डायमेंशंस के अंदर कैटेगराइज किए गए हैं। दे आर हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। समझ में आया? तो ये देखो क्या है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अंदर 3 थीम्स हैं, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, और इन 3 थीम्स के अंदर ही इन 10 इंडिकेटर्स को जो है कैटेगराइज किया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो पहले 2 इंडिकेटर्स हैं वो हेल्थ से रिलेटेड है, मतलब आपका जो न्यूट्रिशन है और चाइल्ड मोर्टेलिटी है ये आपका हेल्थ के अंदर आता है ना। उसके बाद ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, ये जो 2 चीज है ये आपका एजुकेशन के अंदर आता है। और एक्सेस टू कुकिंग, फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग एंड एसेट्स, ये सब जो है आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर आ जाता है। और ये जो थीम्स हैं इनको क्या किया गया है कि इक्वल वेटेज दिया गया है, 1/3, 1/3 और 1/3। ठीक है, और फिर उन थीम्स के अंदर भी जितने इंडिकेटर्स हैं उनको भी इक्वल वेटेज दिया गया है। समझ में आया? तो अगर ये 1/3 है और 1/3 के अंदर अगर 2 चीजें आ रही हैं, जैसे कि आपका एजुकेशन के अंदर
है ना, सॉरी हेल्थ के अंदर ले लो, अगर हेल्थ के अंदर आपका दो चीजें आ रही हैं तो 1/3 में दो को अगर आप आधा आधा बांटोगे तो 1/6 इसीलिए यहाँ दिखा है कि न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी हैव बीन असाइंड 1/6 वेट ईच, है ना। अब स्कूल ईयर्स ऑफ, अब स्कूलिंग के अंदर अगर आप देख लो उसी तरीके से है, और उसी तरीके से आपका इस पे भी बनेगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो इतना जो डिक्रीज हुआ है पॉवर्टी में 76% से हम 46% पे आ गए, तो आखिर कैसे हुआ है। तो सरकार के द्वारा बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स चलाए गए हैं जो कि पॉवर्टी को डिक्रीज करने में कंट्रीब्यूट किए हैं, जैसे कि उज्ज्वला योजना जिसके तहत फ्री में गैस सिलेंडर दिया गया है ना। गैस सिलेंडर नहीं, बेसिकली आप बोल सकते हो कि गैस कनेक्शन दिया गया है, ठीक है, सिलेंडर के तो पैसे लिए हैं सरकार ने, ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना दिया है, ठीक है। तो ये सभी, ये दोनों क्या किए हैं, ये दोनों आपका ये जो तीसरा थीम है आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का, इसको इम्प्रूव किया है। देन स्वच्छ भारत मिशन है, उसके बाद आईसीडीएस स्कीम चलाया गया है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, मिड डे मील, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, है ना। ये सब जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को कम करने में मदद किया है। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट जो स्कीम्स चलाए गए हैं, स्टेप्स लिए गए हैं हमारी सरकार के द्वारा, ये इन सभी के कारण ही जो पॉवर्टी है वो 74.7% से लेके 46.5% पे आ गया है। तो ये आपके मेंस के लिए भी एक फॉर्डर पॉइंट तैयार हो गया है कि क्यों, मतलब कि पॉवर्टी से रिलेटेड हमारी सरकार क्या क्या कर रही है। तो ये स्कीम्स को आप अपने आंसर्स में कोट कर सकते हो। तो देखो यार, यही फायदा होता है जब आप एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को पढ़ते हो ना, तो जो एक्चुअल में जो सरकार क्या कर रही है, क्या स्टेप्स ले रही है, क्या डाटा है, वो सब जो है आपको इन्हीं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जैसे इकोनॉमिक सर्वे से मिलता है, और आप इनको ही अपने आंसर्स में कोट करोगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आज की डेट में अगर हम देखें तो मल्टी डायमेंशनल पुअर झारखंड में 46% है, और 54% जो है वो नॉन पुअर की कैटेगरी में आते हैं। तो ये फाइनल था कि पूरा जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऑफ झारखंड के बारे में हमने पढ़ा, और उसी का कंक्लूजन जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि देखो जीडीपी जो है हमने पढ़ा कि 7.2% जो है करंट फाइनेंशियल ईयर में इसका ग्रोथ रेट एस्टिमेटेड है, ठीक है। पर कैपिटा इनकम जो है इसका ग्रोथ जो है 9.96% एट करंट प्राइसेस एंड 5.6% एट कांस्टेंट प्राइसेस जो है वो एस्टिमेटेड है। उसके बाद जीएसडीपी जो है वो, उसका अगर हम ग्रोथ रेट देखें, एनुअल ग्रोथ रेट, तो 6% एट कांस्टेंट प्राइसेस एट 9.4% एट करंट प्राइसेस है। पर कैपिटा इनकम की बात करें तो उसका जो ग्रोथ रेट रहेगा एनुअल, वो 4.3% एट कांस्टेंट प्राइसेस एंड 7.8% एट करंट प्राइसेस रहेगा। फिर एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ झारखंड जो है हैज बीन लेस देन द नेशनल एवरेज, उस, है ना। तो ये आप जरूर याद रखिएगा। उसके बाद टर्शियरी सेक्टर जो है वो, उसका जो ग्रोथ रेट है वो फास्टेस्ट रहा है, 8.3% ग्रोथ रेट रहेगा इसका 2019-20 में। और उसके बाद जो प्राइमरी सेक्टर है उसका, और जो सेकेंडरी सेक्टर है 4% से कम रहेगा, ठीक है, 3.5% एंड 3.9% रिस्पेक्टिवली। उसके बाद कंट्रीब्यूशन इन जीएसडीपी जो है वो 46.7% आपका टर्शियरी सेक्टर का रहेगा, और इसका ग्रोथ रेट में जो कंट्रीब्यूशन है वो 65% रहेगा 2019-20 में। तो ये जो मेजर डाटा जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपके इस कंक्लूजन पोर्शन में दिए हुए हैं, ठीक है। एटलीस्ट इन डाटा को आप जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे देखो रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन झारखंड जो है वो 7% से बिलो ही रहा है, ठीक है। और 2018-19 में ये 3.9% रहा है। तो झारखंड इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स हैज मेड द फास्टेस्ट रिडक्शन इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर ध्यान रखिएगा। और अबाउट 72 लाख पीपल इन झारखंड हैव कम आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन 10 years फ्रॉम 2005-6 टू 2015-16। ओके, द परसेंटेज ऑफ मल्टी डायमेंशनल पुअर जो कि हमने देख लिया कि 2015-16 में वो 46.5% आ गया है, वही 2005-6 में ये कितना था, तो 74.7%, ठीक है।
तो ये आप जरूर ध्यान में रखिए, ये सब इंपॉर्टेंट डाटा थे जो कि हमको चैप्टर नंबर 1 से पढ़ना है। आप जो प्रीवियस डाटा हमने जितने भी पढ़े हैं, अगर आप उनको मतलब सब तो याद आपको रखने की जरूरत नहीं है, बस आप ट्रेंड जरूर ध्यान में रखिएगा। बट जो फाइनल जो आपको डाटा ये कंक्लूजन पोर्शन में दिया हुआ है, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा और जॉट डाउन करके याद करने की कोशिश करिएगा। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो है हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगला जो चैप्टर है वो फिस्कल डेवलपमेंट एंड स्टेट फाइनेंसेस का है, उसको हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करें। आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। धन्यवाद।